is our English grammar and communication class, right? So, Yes, Poonam, ma'am. what do you expect from this class? Yes, ma'am. What do you expect from this class? मैम हिंदी में बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, हिंदी में बोलो, आज है फर्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मेरी इंग्लिश स्पोकन में बहुत प्रॉब्लम है और ग्रामर में भी बहुत, तो आज मैं मैम इसलिए ग्रामर की क्लास ज्वाइन की। ठीक है, okay, so this is the first day of both of you, so can you please one by one introduce yourself? रचना, Yes, introduction ma'am. okay, अपने आप को introduce करिए। Okay, ma'am. I'm great, ma'am. Okay, ma'am. Okay, 5 rest of one, okay, हाँ, no problem, take your time. If you want 5 minutes, please mute yourself first, and after that, you can give your introduction. Now, Poonam, can you please introduce yourself to her? Yes, ma'am. Can you please introduce yourself to Rachna? Ma'am, you start your introduction. Hello. बेटा, हाँ, पहले पूनम इंट्रोडक्शन देंगी, फिर रचना इंट्रोडक्शन देंगी, ठीक है? तब तक रचना आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। Okay, ma'am. हाँ, yes, पूनम, you can start your introduction. Poonam, please unmute yourself. Hello. Yes, yes, हाँ. My name is Poonam Yadav. And my father. अपना मोबाइल, see, both of you, please put your mobile somewhere, so that आप लोग जब हाथ से पकड़े है ना तो हिल रहा है। रचना, आप लोग Yes, अपने ma'am. दोनों लोग अपना अपना मोबाइल कहीं रख दीजिए, किसी टेबल पे या किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपका चेहरा भी दिखे और आप हिले तो वो ना हिले, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, Network किसी की problem, ma'am. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, okay, now okay. Yes, Poonam. Ma'am, my name is Poonam Yadav. I live in Allahabad, and I am graduate from Allahabad, BA. And my hobby is dancing and reading book. And Okay. Yes. Okay. Now, Rachna, can you please introduce yourself? Ma'am, my name is Rachna Sinha. I live at Birhana near Charaha, Lucknow. I did MA in Shiva Chhatrapati Ji Kanpur University. I have 5 members in my family. I am eldest one. My father is accountant. My mother is a homemaker. Skill and fresh experience. Strength, positive thinking and life. I want to be a teacher. Hobby, music and dancing. Okay, very And nice. that all about me. Thank you. अरे वाह, थैंक यू, वेरी नाइस। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग चूंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को हिंदी में ही समझाऊंगी, क्योंकि मुझे बेसिकली ये जानना है कि आप लोगों को मुझे किस लेवल से पढ़ाना रहेगा। तो बिल्कुल जीरो से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, नॉट इवन ABCD, ठीक है? अल्फाबेट और लेटर्स भी नहीं आ रहे हैं। मैं वहां से शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल जीरो से, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को आता है बेसिक में, और जो नहीं आता होगा वो आप रिवाइज हो जाएगा, और जो आता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. आई होप you all can yes, see my screen. Is it visible to yes or no? Rachna, Poonam, is my screen is visible to both of you? Okay, Yes, very ma'am. nice. Okay. Okay, very nice. So the first thing is, do you know alphabets? ABCD आती है सबको? Okay. Yes, ma'am. आती है? Okay. Yes, So रचना, कितनी ABCD होती है? अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? ma'am. रचना, Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं?
How many letters there are in alphabet? मैम Okay. Poonam, tell me how many letters are there in मैम alphabet? 24। 24 होते हैं. काउंट करो. कितने होते हैं? ABCD नहीं आती. 24 होते हैं, isn't it? मैम 26। Yes, there are 26 letters in alphabet. Clear? Okay. So, alphabet तो नहीं आता है आप लोग को. आता है ना सारा? अब ये तो पढ़ाना है नहीं. Now, the next thing is, okay, just. Now the next thing is, do you know what is vowel? Vowel पता है आप लोग को क्या होता है? मैम 5 वोवेल। अच्छा, पहले ये बताइए अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस है? मैम हाँ, अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है? लेटर भी सुना है आप लोगों ने, राइट? यस मैम। अल्फाबेट भी नाम सुना है दोनों ने? सुना है नहीं सुना है? हाँ या ना बताइए. सुना है? ओके. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्योंकि दोनों में ABCD कंज्यूम होता है, राइट? इंक्लूड होता है. मैम अल्फाबेट मैम बड़े स्पेलिंग में होता है, शुरुआत बड़े से और लेटर में मैम छोटे से होती है. Okay. Yes, Poonam, do you want to say something about what is the difference between alphabet and letters? यस मैम अल्फाबेट मैम बड़े से होता है और लेटर अल्फाबेट बड़े से होता है. बड़े से होता है और लेटर छोटे से. बड़े से क्या होता है? मतलब मैं समझी नहीं. ये बड़े से का क्या मतलब है? What is बड़े से होता है? बड़ा आम छोटा आम ऐसा कुछ है? एक्सक्यूज मी मैम अल्फाबेट जो पहला लेटर होता है वो बड़े से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर होता है, और जो छोटा लेटर होता है वो छोटे से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर. अच्छा, दोनों का आंसर सेम है, isn't it? नो मैम, मेरा डिफरेंट अलग है. अच्छा, ओके. पूनम आप बताओ. ओके. अल्फाबेट में मैम बताइए प्लीज टेल मी. यस पूनम, डू यू वांट टू से कैपिटल समथिंग? होता है मैम. अल्फाबेट में बड़े से लिखा जाता है कैपिटल और स्मॉल लेटर होता है. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. अल्फाबेट सी both includes ABCD to A to Z, right? But when we are addressing single letter, ठीक है, सिंगल लेटर मतलब अगर हमने सिर्फ A बोला है, हम कहीं सिर्फ B लिख रहे हैं, सिंगल सेपरेट होके लिख रहे हैं, तो वो आपका A जो है, जब सिंगल आप बात करते हो A, या कभी सिर्फ B बोल रहे हो, कभी C बोल रहे हो, जब सेपरेट यानी सिंगल यूज कर रहे हो तो वो लेटर कहलाता है. और अल्फाबेट इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स, ठीक है. मतलब जब हम उसे ग्रुप में बोलते हैं तो वो आप A to Z, जब हम उसकी सीरीज क्रिएट करते हैं, उसे ग्रुप में ग्रुप ऑफ लेटर्स जब हम यूज करते हैं तो वो आपका अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है. तो बोथ आर, आई थिंक, टू बिकम अ टीचर, अगर आपको कभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो ये बेसिक डिफरेंस अल्फाबेट और लेटर्स का जरूर बताइए. अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ABCD को अल्फाबेट समझते हैं. ABCD इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स. अल्फाबेट इज अ सीरीज और ग्रुप ऑफ लेटर्स. लेकिन अगर आप सिंगल यूज कर रहे हो ABCD या Z तक में किसी भी लेटर का, तो वो लेटर कहलाता है. क्लियर बोथ ऑफ यू? क्लियर है? Rachna and Poonam, is it clear to both of you? Yes or no? Yes ma'am. Yes Okay. ma'am. Okay. So now comes on vowel. Now, what is vowel in alphabets? Do you know? Vowel क्या होता है alphabet? हाँ. Yes. Ma'am, vowel A, E, I, O, U. Okay. Rachna. Yes. हाँ. बेटा vowel क्या होता है? अल्फाबेट में वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट सुना है कभी? यस मैम, सुना.
वॉवेल, हाँ, तो बताओ क्या होता है, याद है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस वक्त आपको याद नहीं होगा, बस हम एक रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है? पढ़ा तो सबने है यस कि मैम। हम लोग सब आप दोनों वेल क्वालिफाइड हैं, दोनों ग्रेजुएट हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हमें पता है कि आपको पता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन आप भूल गए हो इतने सालों में, इसलिए हम रिवीजन करा रहे हैं। बिकॉज अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो इंग्लिश बोलना और उसको फ्रेम करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो वॉवेल क्या है? मैम वॉवेल जो मैम बीच का अच्छा, जो वर्ड होता है मैम, उसे कहते, जैसे जैसे मैम ए आ गया, ई आ मैम, ई आ नाइस, गया, हाँ, मैम जैसे ओ आ गया, ठीक है, आई हो गया, हाई राइट, हो गया मैम, मैम वो यू वॉवेल हो गया, कहलाता है। ठीक है? यू हो So गया। there are 5 letters which known as vowel. First is A, E, I, O, U. These 5 letters known as vowel as known as vowel in English grammar. ठीक है? And the rest letter of the alphabet is known as consonant. ठीक है? जो बाकी के letters है जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, WXYZ, ये जो बाकी जो रेस्ट लेफ्ट हो जाते हैं जो कि वॉवेल में नहीं इंक्लूड होते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर बोथ ऑफ यू? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, ओके। So now tell me, what is the difference between vowel and consonant? Why only these 5 letter includes in vowel and the rest one include in consonant? What is the reason behind this? There is some reason na why only 5 letters included in vowel and the rest one is included in the consonant. क्या reason है? कोई बता सकता है? क्यों vowel को ये सिर्फ 5 लेटर को ही क्यों vowel बनाया गया है? क्यों बाकी को B क्यों नहीं vowel है? या B क्यों consonant है? कोई बता सकता है ये? रचना, do you have any idea? No. No ma'am, no idea. Poonam, do you have any No, idea? ma'am. Okay. No, ma'am. See, I'm going to tell you what is the difference. The difference is related with the sound of letters. ठीक है? साउंड जो है, और साउंड का भी क्या, साउंड में दोनों में साउंड निकल रहा है। जैसे आप जब बोलते हो, जैसे ए बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, तो साउंड एक निकल रहा है ना आपके माउथ से, ए बी सी डी। तो डिफरेंस क्या है? ए ई आई ओ यू आपके वोकल कॉर्ड से, ये आपके वोकल कॉर्ड से निकलता है। आपको बस बेसिक डिफरेंस ये जानना है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, हाँ सुन लीजिए पहले, वरना वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। ए ई आई यू का डिफरेंस ये है कॉन्सोनेंट से, आपकी वोकल कॉर्ड से आप बोलते हो और आपको अपने लिप्स और टंग का यूज नहीं करना होता है। उन लेटर्स को हम वॉवेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ए बोल रहे हो, ए में आपका टंग आपके अपर पार्ट ऑफ माउथ से टच नहीं हो रहा, आपका बी लिप्स आपके टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है? ई आई ओ यू, ठीक है, इन पांचों में आपका टंग और आपके लिप्स का कोई यूसेज नहीं होता। बट जब भी आप बी बोल रहे हो, बी में देखो आपके लिप्स टच होंगे, बिना टच हुए आप बी वर्ड नहीं बोल सकते। सी हो गया, सी में टंग टच हो रहा है, ठीक है? डी हो गया, डी में भी टंग टच हो रहा है। तो इस टाइप से जिस भी लेटर को बोलते समय आपके लिप्स और टंग आपके माउथ से टच होते हैं या एक दूसरे से टच होते हैं, तो वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं, ठीक है? क्लियर बोथ ऑफ यू? इज देयर एनी कंफ्यूजन? यस और नो? No, ma'am. रचना, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? समझ में आया? मैम रिपीट यू, मैम नो मैम रिपीट यू। नहीं आया, मैं हिंदी में समझा रही हूँ। सी सिंपल सा है, वॉवेल की जो साउंड होता है, मतलब जब आप वॉवेल को बोलते हैं, ठीक है, अल्फाबेट को जब आप बोलते हैं, तो हम वॉवेल में 5 को रखे हैं, तो 5 के बिना कोई वर्ड बनेगा नहीं। मतलब आप 5 की साउंड के बिना, ए ई आई ओ यू, ये एक साउंड है, ठीक है? और इनके साउंड के बिना कोई वर्ड नहीं बनता। दूसरा चीज, इनको आप बोलते समय अपने लिप्स और टंग का यूज नहीं करते वॉवेल को बोलते समय। कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट जो है, आप जब भी कॉन्सोनेंट के वर्ड्स लेटर्स बोलेंगे, तो आपके जीभ और आपके जो टंग है, जो जीभ है, आपकी लिप्स जो है, जो होंठ है,
वो आपके माउथ से या एक दूसरे से टच होंगे। तो ये डिफरेंस होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो रचना तुम बोलो वॉवेल ए ई आई ओ यू बोलो। ए बोलो, तेज से बोलना। ए में आपका टंग नहीं टच हुआ ना? ए तो यही डिफरेंस है। हाँ अब बी बोलो। बी में देखो लिप्स टच हो रहे हैं? बी नो मैम, लिस्ट नहीं टच हो रहा है। कैसे नहीं हो रहे हैं? आप फिर से बोलो बी। बी में तो बी साफ टच हो रहा है। यस मैम, बी पी नहीं, बी बी बी। हाँ पी बोलो या बी बोलो। इसमें लिप्स टच हो रहे हैं ना? हाँ यस टच हो रहे हैं ना। तो टंग और लिप्स का जब यूज हम करते हैं कोई भी लेटर बोलते समय वो कॉन्सोनेंट होता है, और जिसमें हम नहीं यूज करते वो आपका वॉवेल होता है। क्लियर? पूनम Yes, डू यू ma'am. हैव एनी क्वेश्चन? No ma'am, no ma'am. प्रैक्टिस करो। वॉवेल Ma'am, की कोई A? वर्ड बोल। हाँ ए में टच हुआ? No ma'am. ओके अब कोई कॉन्सोनेंट के वर्ड बोलो। M. Ma'am, lip touch M हो रहा है M. हो रहे हैं। सो अब डिफरेंस समझ में आ गया आप लोग को? कोई Yes कंफ्यूजन है? ma'am. No ma'am. रचना कोई कंफ्यूजन है? ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज सेंटेंस। नाउ टेल रचना, कैन वी हैव रचना? रचना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हेलो नाउ टेल मी व्हाट इज सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। सेंटेंस क्या होता है रचना? मैम सेंटेंस मैम हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ हाँ बोलो, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोई वर्ड इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं वो जो मिस्टेक हो जाती है उसको मैम, जैसे कोई हमको क्या कहते हैं मैम, डिफिनीशन लिखनी है। उस डिफिनीशन में अगर कोई सेंटेंस गलत हो गया उस वर्ड को सही करने को मैम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैम नाउन की, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। नाउन की जैसे मैम मैंने कोई डिफिनीशन लिखी और उसमें उस सेंटेंस को डिफिनीशन को सही करना मैम सेंटेंस कहलाता है मैम। पहली बात तो डिफिनीशन वर्ड नहीं होता, आपको नेक्स्ट टाइम से डेफिनीशन बोलना है। क्या बोलेंगे आप? प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डेफिनीशन। फिर से बोलो डेफिनीशन। हाँ डी ई है, सो डेफिनीशन। क्लियर? ओके सो नेक्स्ट टाइम से प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। क्या बोलेंगे आप? डेफिनीशन। क्लियर? बोलो रचना डेफिनीशन बोलो। फिर से बोलो, तेज बोलो। डेफिनीशन। ठीक है हाँ, तो नेक्स्ट टाइम याद, हाँ नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। नाउ पूनम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सेंटेंस? हमारा भी यही है हिंदी में कि मैम वो जब किसी शब्द को गलत नाम हो जाता है तो उसी को उसको सही करने को सेंटेंस कहते हैं। ये कहाँ से पढ़े हो? उसको कहाँ से? हाँ मैम कम थोड़ा बहुत याद आ रहा है मैम, सच में मैं भूल गई हूँ। सेंटेंस कैसे नहीं समझ में आ रही? ये कहाँ से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जब कुछ गलत लिखते हो तो वो तो क्वेश्चन आंसर हो गया। यस मैम। तो फिर रचना के साथ शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया। एनीवेज मैं बताती हूँ। सेंटेंस का बेसिकली मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच मेक सम सेंस, ठीक है, और विच एक्सप्रेस सम फीलिंग्स और सम थॉट्स इज नोन एज सेंटेंस। क्लियर? मतलब आप छोटे छोटे वर्ड तो समझ रहे हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स आपके वर्ड कहलाते हैं, ठीक है, विच मेक सम सेंस, कुछ मीनिंग निकालता है, वो आपके वर्ड हो गए। वर्ड समझ में आ गया पूनम? यस मैम। ठीक है, और जब उन ग्रुप, हेलो रचना आर यू देयर बेटा? कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा? Yes, ma'am. Okay. Sorry, Okay. my So, connection is problem is repeat you class.
Okay, no problem at all. There is some network issue can be occurred. Okay, हम सेंटेंस की बात कर रहे थे. सी रचना, वर्ड जो होता है वो मैं तुम्हें हम समझा बात कर रहे थे इस पे. वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स. ठीक है, लेटर हम समझ गए हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू. ठीक है, वो हम अरे सॉरी ए ई आर क्या नाम, ए टू जेड जब हम सिंगल में यूज करते हैं वो लेटर होता है. अब जब हम लेटर्स के ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप इन द सेंस 2-4 लेटर को हम मिला करके एक वर्ड बना रहे हैं और उस वर्ड की कोई मीनिंग है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. वर्ड की ग्रुप ऑफ लेटर्स की वर्ड की कोई मीनिंग होती है तो वो वर्ड कहलाता है. और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाए और उनको मिला करके एक ग्रुप बना दिया और उससे कोई मीनिंग निकल रहा है. ये जिसकी भी तरफ आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर लो. जब मैं बोलूं म्यूट कर लो, जब मैं पूछूं तो आप लोग अनम्यूट करके जवाब दीजिए. ठीक है. हाँ, मैं बता रही थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं. और इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि वो जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए हैं उनसे कोई मीनिंग निकले, उनसे कोई आपकी सोच समझ में आए. ठीक है, वो आपका सेंटेंस कहलाता है. आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बहुत सारे, जैसे अगर हम आपके सामने एक सेंटेंस दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है, उसमें लिखा होगा आई लाइक स्पोर्ट. अब आप इसको इस तरह से फ्रेम कर दीजिए, स्पोर्ट्स आई लाइक, तो वो मीनिंग नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो मीनिंग निकलना बहुत जरूरी होता है सेंटेंस में. ठीक है, तो ये क्लियर है. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस मैम. ओके, रचना कंफ्यूजन है कोई? मैम यस. क्या बताओ, सेंटेंस क्या होता है तुम बताओ मुझे. मैम पूछो, यहाँ पढ़ने आई हो, बिना हेजिटेशन पूछो, क्या पूछना है. मैम जैसे कि आपने बताया कि जो मीनिंग का सेंटेंस निकलना होता है, जैसे आपने मैम अभी बोला था आई लाइक यू, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ. मतलब स्पोर्ट्स लाइक आई, हाँ स्पोर्ट्स आई लाइक, ये सेंटेंस गलत हुआ. आई लाइक स्पोर्ट्स यू, ये सेंटेंस ये सही है. एग्जैक्टली, हाँ मीनिंग निकल रहा है ना. स्पोर्ट आर लाइक का क्या मीनिंग है, आप बताओ, कुछ मीनिंग निकल रहा है उसका? नहीं निकल रहा है ना. तो आप लेकिन तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, क्योंकि उसमें वर्ड है ना, ग्रुप है, वर्ड है, सब है, लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी कोई मीनिंग निकले, जिससे कोई थॉट आपका समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, वो आपके सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है, बोथ ऑफ यू. अब कोई कंफ्यूजन है? ओके, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी आप लोगों से, इसलिए मैं पूछती जा रही हूँ कि ठीक है. सो नाउ जस्ट अ सेकंड. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, जब भी हम पढ़ते हैं, व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी रीड, व्हेन वी राइट, वी मेक यूज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इज दैट when the sentence begins, it begins with the capital letter. capital letter आप लोग समझ रहे हो? कैपिटल लेटर समझ रहे हो? अभी लास्ट शुरू में आपने बताया था ना, कैपिटल लेटर जो बड़ा हो, बड़े सॉरी थोड़े बिग साइज का लिखा जाता है, दैट इज अ कैपिटल लेटर, राइट. एंड स्मॉल लेटर, जब आप लेटर्स को स्मॉल साइज में लिखते हैं, दैट इज अ स्मॉल लेटर. तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग होती है तो वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है और एंड हमेशा पंक्चुएशन मार्क में होता है. ठीक है, punctuation. Now the another question arises is that what is punctuation marks? Can anyone tell me what is punctuation mark? Yes Rachna, punctuation mark क्या होता है sentence में? Ma'am, no idea. No idea. Yes Poonam, what is punctuation mark in the sentence? Ma'am, punctuation mark actually नहीं मैम. बोलो बोलो बोलो. नो आइडिया, नो आइडिया. नहीं, जो बोल रही थी वही बोलो, गलत ही तो बोलोगी ना. हम तो इतनी दूर बैठे हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, मैं मार भी नहीं सकते, तो क्यों डर रही हो तुम लोग? हाँ, और वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट को मारती नहीं है, सो डोंट वरी. टेल मी, बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट जस्ट स्पीक विदाउट हेजिटेशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट. सॉरी, कम अगेन पूनम, come again, speak again. I'm not. मैम लास्ट में जो फुल स्टॉप और कॉमा
Yes, that is a punctuation mark. आपने full stop, comma, exclamatory signs ये सब देखा है? तो ये जो मार्क हम लगाते हैं अपने सेंटेंस के लास्ट में, that is known as punctuation mark. Full stop, you can see on the screen what is the symbol of full stop. ठीक है? It is a dot. Second is the question mark, right? Third is the exclamatory marks, and there are 14 punctuation marks in the English grammar. ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने मार्क्स होते हैं. पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश ग्रामर में 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं. ठीक है, सो अब समझ में आ गया पंक्चुएशन मार्क क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज okay sentence how you can how many parts of the sentence, can anyone tell me कितने पार्ट्स होते हैं. अगर आपको एक सेंटेंस मिला है और आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे according to the category. Rachna, do you know beta? Yes ma'am. Tell me. मैम तो आधे में सॉरी क्या मैम बेटा? जैसे कोई सेंटेंस लिखा मैम गैप में डिवाइड करना मैम. जैसे मान लो सेंटेंस है रचना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, Yes, द ma'am. सेंटेंस इज दैट. तो Yes, आपको ma'am. उसको दो पार्ट भी चलो मैं बता दे रही हूँ आपको. ठीक है, द पार्ट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लियर? Yes, There are ma'am. two parts of sentences that is known as subject and predicate. Clear? Now, Rachna, tell me the sentence is Rachna is a beautiful girl. So, Yes, what ma'am. is subject in this sentence and what is predicate in this sentence? Ma'am, Can you tell subject me? ma'am subject रचना. Okay. And predicate, what is predicate? Which is predicate in this sentence? Ma'am, good girl. Good girl. Okay. Now, Poonam, can you tell me? Yes, ma'am. The Ma'am, sentence is Rachna is a beautiful girl, and in this sentence, which is subject and which is predicate? ma'am, the Rachna subject or beautiful girl is predicate. Sir. Beautiful girl is a predicate. Okay. See, subject is something about who and मतलब से एक सेंटेंस में मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ. एक सेंटेंस में किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में मतलब हु और व्हाट. ठीक है, ये जो चीज है जिसके बारे में कुछ नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं सेंटेंस के, वो आपके सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, जिसके बारे में वो सेंटेंस. प्लीज म्यूट करो अपने आप को. रचना और पूनम म्यूट करो पहले तुम लोग, क्योंकि ये जो आवाज आती है ना बहुत डिस्टर्ब करता है. सी सब्जेक्ट जो होता है वो किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल रचना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल किसके बारे में कहा जा रहा है? रचना के बारे में. ठीक है, तो जो बाकी का सेंटेंस है वो रचना को एड्रेस कर रहा है, रचना जी के बारे में कुछ कह रहा है, तो वो सब्जेक्ट है. ठीक है, और रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब रेस्ट पार्ट इन द सेंस कि क्या कहा जा रहा है, क्या हैपेंड हो रहा है, क्या घटना हो रही है, क्या मैटर है. ठीक है, तो वो आपका प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस होता है, और वो सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी वर्ड्स होते हैं उस सेंटेंस में वो सारे ही प्रेडिकेट कहलाते हैं. ठीक है, नाउ क्लियर बोथ ऑफ यू? yes or no? Yes, ma'am. yes or no? Rachna? Yes. Rachna, unmute yourself first. Yes, ma'am. yes yeah ठीक है. now okay, so ये तो आपको दिख ही रहा है. now next, ये समझ में फिर से आ गया आप लोगों को कि जो नाउन होता है या जो नाम होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी के जो सेंटेंस है क्या कहा जा रहा है वो पूरा आपका प्रेडिकेट होता है. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रिया लाइक्स स्पोर्ट्स. ठीक है, सो रचना टेल मी व्हाट इज व्हिच इज प्रेडिकेट सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? Ma'am, Priya. okay, Ma'am, and Priya subject. yes, Priya is a subject and the rest sentence is predicate. Clear? Now, okay. Poonam, can you tell me which is the predicate in this sentence?
What is the predicate in this sentence, Poonam? The sentence is the sun was shining brightly. So can you tell me? Are you there, Poonam? Please unmute yourself first. Sorry, ma'am. Hello? Okay. The sentence is, yes, you are audible now. Poonam? Yes. Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. okay. Now the sentence is the sun was shining brightly. So which is the Ma'am. predicate in this sentence? Ma'am, shining brightly. Ma'am, sun subject है. Was shining brightly. See, brightly. except subject, the rest part of the sentence is known as predicate. Clear? Yes. मतलब सब्जेक्ट ma'am. के अलावा जो कुछ भी है सेंटेंस में, जितने भी वर्ड हैं, वो सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं. ठीक है? रचना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, Rachna, can you tell me which is subject in this sentence and which is predicate in this sentence? The sentence is the dogs were barking loudly. Ma'am, the dog is subject. Okay. और मैम where barking and loudly मैम protected. Predicate, beta. Sorry मैम, predicate. Sorry मैम, predicate. हाँ, no problem. मैं तो यहाँ हूँ ही सिखाने के लिए. और फिर से पढ़ो, where नहीं होता है, it's were. W-E-R-E is called as a were. Pronounce कैसे किया जाता है? were. ठीक है? So next time पे where इसको नहीं बोलेंगे, आप were बोलेंगे. Were भी नहीं बोलेंगे. R is silent, in a little bit silent mode. So were. Okay? So the dogs were barking loudly. ठीक है? Okay. So the next sentence, Poonam. Now yes, you can tell me which is subject and which is predicate. The sentence is the pretty girl was wearing a blue frock. Ma'am, girl is subject है. Okay. और the was wearing a blue frock predicate. Wearing नहीं, it's wearing. Sorry, ma'am, wearing. Okay. So the pretty girl is a subject and was wearing a blue frock is a predicate. Okay. The next thing is my younger brother serves in the army. So Rachna, can you tell me which is subject and which is predicate? मैम सब्जेक्ट माय यंगर ब्रदर मैम सब्जेक्ट हो गया है और मैम सर्विस इन द आर्मी मैम प्रोटेक्ट सॉरी मैम स्पेलिंग नो प्रॉब्लम सॉरी मेरी स्पेलिंग प्रेडिकेट पहले तो प्रेडिकेट बोलो predicate okay and it's not service it's serves ठीक है serves so my younger brother is a subject and serves in the army is a predicate clear Rachna and Poonam now yes ma'am. Okay now it's Poonam's turn. Poonam, tell me which is the subject and which is the predicate in this sentence. Next week my grandmother is coming from Kanpur. Ma'am, my grandmother Poonam subject is coming and is coming from Kanpur predicate. It's a predicate. And what about next week? What is next week? Next week, ma'am, predicate. Yes, very good. So my grandmother is a subject because उनके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि वो next week कानपुर से आ रही हैं. So next week and is coming from Kanpur is known as predicate. Clear? So both of you are clear what is subject and what is predicate in the sentence. Rachna, are you clear? Okay. Yes, Poonam, are you clear? Okay. Shall we move further? Okay. Very nice. So the next type of sentences. See, don't get confused. In the previous one, we are, we are studied about the category of the sentence. कैटेगरी मतलब हमने एक सेंटेंस को तोड़ा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. अब जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इट इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. स्ट्रक्चर का मतलब कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है.
तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने अब काइंड्स टाइप्स को या काइंड्स को पढ़ेंगे. क्लियर? So how many types of sentences according to the structure? Can anyone tell me? Rachna, can you Yes, tell ma'am. me how many types of sentences according to the structure? Structure का मतलब होता है कि आप जैसे कुछ कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुमसे पूछती हूँ अगर कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, सो इट इज नोन एज अ क्वेश्चन सेंटेंसेस, राइट? सो इस टाइप से कितने सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पता है तुम्हें? यस रचना, टेल मी यस और नो. डू यू नो Ma'am, और no. नो? Ma'am, no. नो. ओके. यस पूनम, कैन यू टेल मी? मैम फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए. How many types of sentences according to the structure of sentence? Structure का मतलब होता है कि एक सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये किसके यहाँ बच्चा बोल रहा है, वो प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को. ओके. सी हम ये मैं क्या बोल रही थी कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. तो ये क्या है, ये क्वेश्चन सेंटेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका क्या है कि मैं आपसे कुछ पूछ, क्या बता रहा है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है. उसी तरह से एक सेंटेंस के कितने कैटेगरी होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. डू यू नो इट? नो मैम. Do you know? Yes. Okay. No. So tell me frequently, without hesitation, you can tell me yes or no. ठीक है? That is not a problem. यहाँ पे हम learn करने ही सीखे आए हैं. ठीक है? तो मैं बताऊंगी आपको कि कितने हैं. There are mainly 4 kinds of sentences. Give me 2 minutes. वैसे तो बहुत सारे हैं कैटेगरी, बट यहाँ पे मैं अभी फिलहाल आपको बेसिक में 4 कैटेगरी बताऊंगी, ठीक है, सो दैट यू कैन नॉट गेट. सो देयर आर 4 category of 4 types of sentences according to its purpose or its structure. First is declarative sentence, second is imperative sentence, third one is interrogative sentence. Poonam, No please ma'am. unmute No ma'am. yourself. Yes ma'am. Do you know what is declarative sentence? Okay, you know. Okay. अच्छा, ये चारों में से कोई पता है? इन चारों में से कोई पता है? रचना तुम बताओ. Okay, Yes, ma'am. रचना. Yes, ma'am. Hello. इन चारों से आप बताओ. हाँ, pick one sentence. Ma'am, ma'am, Yes, आदेशनात्मक. अरे बाप रे. इंटरगेटिव मैम. इंट्रोगेटिव. ओके. इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? मैम प्रश्नवाचक. कहाँ से शब्दकोश से ला रही हो तुम वर्ड्स हैं? कौन सी शब्दकोश तुम यूज करती हो? ओके. Yes, interrogative is a question word. ठीक है? Now, Poonam, you can tell me. Yes ma'am. Interrogative question mark. Only interrogative. You don't know. You both are not, have any knowledge about declarative, imperative, and exclamatory, right? कोई idea नहीं है. Do you have any idea? कुछ guess करो अगर हो तो. What is declarative sentence? What is imperative? या exclamatory क्या होता है? Yes, रचना, tell me. कुछ भी guess करो. Guess करने में. मैम इंटरगेटिव इस प्रश्नवाचक है. पहले तो इंटरगेटिव नहीं होता है, इट्स इंटेरोगेटिव. ठीक है, इंट्रोगेटिव कह सकते हो इसको. यस मैम, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव. यस. हाँ, ये प्रश्नवाचक ही होता है, सही कह रही हो. एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? नो मैम, नो आइडिया. नो आइडिया. चलो हम फिर बढ़ते हैं आगे. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. सी, जब कोई when we are saying something and it it has a direct statement,
ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट इज दैट व्हेन आई एम सेइंग पूनम इज अ वेरी नाइस गर्ल, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कोई ये एक तरह का स्टेटमेंट है कि हमने उसके बारे में कुछ कहा है और लोग सुनेंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है जो कि डिक्लेयर कर देता है कुछ, जैसे मैंने डिक्लेयर किया कि पूनम इज अ नाइस गर्ल, क्लियर। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज समथिंग which a statement that declares something, declare करता है कि हाँ मैंने मेरे हिसाब से किया है, मेरे हिसाब से I feel that Rachna is a brave girl, so I declare that Rachna is a brave girl and Poonam is a very nice girl. So that kind of a statement is known as declarative sentence or assertive sentence. Clear both of you? Any confusion? Yes, any doubt? हाँ बताओ. No, ma'am. No ma'am. Okay. Okay. So and the one more thing is that when declare sentence make a statement, ये मैंने बता दिया, and it is ends with a period और full stop mark. ये भी एक बहुत important चीज है कि declarative sentence का end हमेशा full stop punctuation से होगा. फुल स्टॉप को पीरियड मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, पीरियड मार्क भी उसे बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन फ्यूचर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, हाँ इसके भी दो पार्ट होते हैं. आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस सुना है? टेल मी. ओके, सो पॉजिटिव इज आल्सो नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. सो व्हाट इज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस? यस रचना, do you have any idea what is positive or affirmative sentence? मैम पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो मतलब अच्छा सोच, अच्छा सोच. ओके, यस, सोचना. ओके ओके ओके. यस पूनम, do you want to say something? And please try to speak in English. Okay, मैं हिंदी बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. आप लोग कोशिश करिए, अभी से गलत बोलिए, थोड़ी सही टूटी फूटी बोलिए, रुक रुक के बोलिए, लेकिन कोशिश करिए हमेशा इंग्लिश में बात करने की, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो, राइट, इंग्लिश बोलने आए हो, भी बोलना हो कोशिश करो इंग्लिश बोलने की, ठीक है. सो पूनम टेल मी. मैम पॉजिटिव सेंटेंस इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड ma'am. Okay, no problem at all. Positive is something that give a direct statement like जैसे पॉजिटिव में आप में नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे, नेगेटिव इन द सेंस नॉट वर्ड नहीं होगा, तो वो आपका पॉजिटिव है, राइट, क्वेश्चन वर्ड नहीं है. तो जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जांपल अजय इज अ गुड बॉय, ठीक है, इसमें नॉट यूज नहीं हो रहा है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो पॉजिटिव सेंटेंस है. नाउ the second part of the assertive sentence or declarative sentence is negative sentence. In negative sentence, now Rachna, can you tell me what is negative sentence? मैम निगेटिव मतलब मैम उल्टा सोचना मैम, जैसे जैसे बोलो, मैम डोंट हेजिटेट रचना, प्लीज डोंट हेजिटेट. और अगर कोई बगल में बैठा है तो रचना, जैसे मैम लिखा रचना इज अ गुड गर्ल, तो ये मैम ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बट इसका उल्टा करना, जैसे गुड गर्ल इज अ रचना, तो मैम ये शायद नेगेटिव. नहीं. और पूनम आपको पता है? मैम नेगेटिव सेंटेंस इज अ मैम जिसमें नॉट, नेवर यूज होता है. हाँ, वेरी गुड. सी रचना, इफ द सेंटेंस इज रचना इज अ वेरी नाइस गर्ल, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि रचना इज नॉट अ वेरी नाइस गर्ल, ठीक है, तो जहां पे नॉट, नेवर मतलब आपके हिंदी में मैं बता दूं जो नकारात्मक शब्द होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड होते हैं, वो जब यूज होता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है. क्लियर रचना? ठीक है, जो आप बोल रही थी वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आएगा, वो हम लेटर वी विल स्टडी लेटर इन द क्लास. ओके, दैट इज एक्टिव वॉइस की आप पहले कुछ बोल रही हैं और उसको कभी घुमा के बोलेंगे, so that is comes in the section of active and passive voice. ठीक है, अभी नेगेटिव का मतलब जहां पे नॉट वर्ड आए, नेवर वर्ड आए, मतलब नकारात्मक आप हिंदी के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज अब ये हम कल करेंगे.
अच्छा चलो अभी बता लो. Okay, Vikas is a good baseball player. Rachna, what type of sentence it is? Yes, ma'am. If the sentence is Vikas is a good baseball player, okay? So what Yes, is the which kind of sentence it is? Positive ma'am. or negative? Ma'am, Vikas is a good, ma'am, positive sentence. Yes, it is a positive sentence. Very good. Okay, Poonam, tell me. Yes, The ma'am. sentence is she doesn't like crowd places. Ma'am, she doesn't like. मतलब मैम negative sentence. Okay, very nice. It is a negative sentence. So you can understand and you can, identify what is positive sentence and what is negative sentence. Clear? Chalo, ab Yes, ye ma'am. ho gaya. Yes. Next thing is, okay. See, the next thing is what is the interrogative sentence? Can anyone tell me? रचना तो बता दी थी प्रश्नवाचक. Now, can you tell me, Poonam, Yes, ma'am. मैम what is वो interrogative सेंटेंस मैम sentence? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस. ठीक है. So, the sentence in which sentence something is going to ask. ठीक है, कुछ पूछा जा रहा है. So Yes, that ma'am. is known as interrogative sentence or question sentence. Clear? Yes, ma'am. Just a second. Okay. See, you can see it. My screen is visible to both of you, right? Yes, ma'am. Okay. So you can see it. Have you seen the movie Matrix? ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है और वेयर डू यू लिव. तो जब भी किसी सेंटेंस में कुछ पूछ रहा है सामने वाला, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. नेक्स्ट थिंग कम्स, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है. ठीक है, लगाना है. ये बहुत मैंडेटरी होता है, अदरवाइज सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं. ठीक है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. ओके, सो नाउ Rachna, you can see some, there is few words of question word, right? Are you able to see it, Rachna? Yes or no? Please unmute yourself and tell me. Do you able to see it? Ma'am, how? Ma'am, question mark. क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है. वर्ड्स Yes, दिख ma'am. रहे हैं आपको. Yes, ma'am. अब कोई एक वर्ड पिक करो. हाँ, पिक वन वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस. कोई भी एक वर्ड ले लो. हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. कोई भी एक वर्ड लो और उससे एक सेंटेंस बनाओ. कौन सा वर्ड ले रहे हो पहले बताओ. टेल मी, विच वर्ड आर यू गोइंग टू पिक? Rachna, tell me beta, Yes, ma'am. which word? Ma'am, how? Which word are, how? Ma'am, Okay, how? okay, okay. How तो बनाओ, word बनाओ. Yes, ma'am. बोलो बोलो, लिखना नहीं है रचना. Don't write it. Mm. Try to make, हाँ, try to make a sentence in your mind. My हाँ, बोलो बोलो. देखो इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी मिल रहा है. हाउ मच, हाउ बिग, हाउ ओल्ड, हाउ टॉल. ये सब है ना, इनमें से कोई एक पिक कर लो और बना लो सेंटेंस. इसको हाउ बिग कर सकते हो. हाउ बिग द टेबल इज. ठीक है, इस टाइप से कर लो. अच्छा, वाई से बनाओ. वाई से बनाओ. वाई. हाउ आर यू पूछ लो सीधा सीधा. हाउ आर यू भी तो एक क्वेश्चन है. Yes, ma'am. हाँ, बनाओ, सेंटेंस बनाओ. Ma'am, what is the chair? हाँ,
What is the chair? Very good. Now, Poonam, it's your turn. Pick one word and make a sentence. Ma'am, what? Okay. What is your name? What are you doing? Very nice. What is your name? What are you doing? Is You're a doing. question sentences. Very good. So the next thing is imperative sentence. So now tell me what is imperative sentence? Do you have any idea? Yes or no? बता दो तो मैं आगे बढ़ूं. Do you have any No, idea? ma'am. Rachna, do you have any idea what is imperative sentence? Ma'am, no idea. Oh, okay. See, uh, in that sentence, we are, giving some advice to someone, or we are going to request to someone, or we are commanding with on someone. ठीक है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट समझते हो, इसकी हिंदी तो बतानी नहीं है. रिक्वेस्ट का मतलब पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रचना, Yes, ma'am. रचना, रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? Yes, ma'am. क्या? Ma'am, request means ma'am, रिक्वेस्ट किसी से कुछ प्लीज करना, निवेदन करना, yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. दैट इज रिक्वेस्ट. Request तो करना. imperative sentence में we are going to request with to someone, और polite request हम करते हैं, या command in the sense हम order देते हैं कि please just close the door. ठीक है, shut the door, और to open the door. ठीक है, तो इस तरह से जब हम ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी पेन, ठीक है, प्लीज डू दिस फॉर मी, इस टाइप से कुछ करते हैं, तो वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस करता है. मतलब ये आपके ऑर्डर, आपके रिक्वेस्ट, आपकी एडवाइस, ये सारी चीजें शो करता है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है. क्लियर बोथ ऑफ यू? एनी कंफ्यूजन? यू कैन आस्क मी राइट No, ma'am. नाउ. Rachna, do you have any question? Ma'am, repeat your. ओके, रिपीट. मैं हिंदी में बता दे रही हूँ, मैं हिंदी में ही बता रही हूँ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें शो होता है कि आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग टू यू, रचना कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन. ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है कि मैं तुमसे पेन की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पेन देने की, राइट? तो इस टाइप का सेंटेंस जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि रचना जस्ट क्लोज द डोर. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम पे कमांड कर रही हूँ, राइट? तो ये क्या हो गया, ये भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा. और इफ आई एम सेइंग टू यू इज दैट रचना प्लीज स्टडी हार्ड. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि प्लीज स्टडी हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल इन योर एग्जाम. तो ये जब हम एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, ये सारी जब फीलिंग्स को शो होता है जिस सेंटेंस में, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है. क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. पूनम, आर यू क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any? Okay, fine. Very nice. So now, can you see the picture on the screen? Yes, ma'am. Okay. So in this picture, try to make some imperative. Rachna, Yes, ma'am. please mute yourself. Ma'am, ये open है. मेरी तरफ से नॉइस आ रहा है, वो अच्छा कोई बात नहीं. रचना, ये पिक्चर देख रही हैं आप? So can you Yes, please ma'am. tell me imperative sentence related to this picture? मतलब इस पिक्चर को देखकर कोई एक अच्छा सा imperative sentence बनाओ. एक लड़की है जो बहुत सारी बुक्स ली हुई है, एक Yes, लड़का है ma'am. जो खड़ा है, ठीक है, पिक्चर में. तो अब Yes, आप ma'am. कोई अच्छा सा सेंटेंस से मिलता जुलता बनाओ. Ma'am, हाँ. girl, हम्म. girl book is a student. सॉरी बेटा, कम अगेन, फिर से बोलो. मैम लड़की बुक लिए मैम, और स्टूडेंट
खड़ा है नहीं तो नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस बनाओ, मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस बताओ इनसे रिलेटेड जिससे रिक्वेस्ट हो रहा हो, एडवाइस जो है, क्या कहते हैं, बनाओ, सेंटेंस बनाओ, खुद से बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसमें मैं अगर मुझे बनाना होगा तो मैं लड़के की तरफ से बोलती कि डू यू नीड हेल्प, कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं लड़का बनती और मैं पूछती कि लड़की से यस कि डू यू मैम। नीड हेल्प, कैन आई हेल्प यू। तो इससे क्या शो हो रहा है कि मैं उसको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या पूछ रहा हूँ कि आप क्या मदद चाहती हैं, ठीक है। गर्ल हेल्प और यू बॉय। आई कैन से दैट आई कैन से पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हुआ। अब मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखा रही हूँ, आप बनाइए। ये पिक्चर दिखा, डू यू सी द पिक्चर? नो मैम। रचना, यस मैम, यस मैम, are you able to see the मेरी स्क्रीन दिख, yes or no? यस मैम। ओके, सो बनाइए सेंटेंस, यस बेटा बनाइए, सेंटेंस बनाइए। मैम मदर इज रिक्वेस्ट कोट इज डॉटर। कोट इज, बोलो डॉटर, बोलो क्या बोला? डॉटर मैम। Okay, so you can say that mother is requesting to her son that to wear the coat, ठीक है। यस wear the मैम। coat मतलब पहनने के लिए बोल रही है, ठीक है। यस Now Poonam, can you see the यस picture? मैम। यस मैम। Okay, so please make the sentence. Okay, मैम इसका सेंटेंस मैम प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट वाला मैम समझ में आ गया था, वो बुक्स नहीं वाला। इसका बनाओ ना, सब कुछ थोड़ी जब समझ में आ गया तो समझ में आ गया, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बनाना है ना, हमें तो सीखना है ना। तो जो जो आ रहा है उसको क्यों सीखना चाह रही हो, जो नहीं आ रहा है वो सीखो, ट्राई करो। गलत ही बनाओगी ना, मैं हूं बताने के लिए। बनाओ। Okay, you can say that boy is saying my finger is hurt, can you please shut the door, ठीक है। क्या बन सकता है ये एक सेंटेंस? यस मैम। यस और नो? हाँ, तो ऐसे यस आपको मैम। ट्राई नेक्स्ट टाइम करना है। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोथ ऑफ यू, यस और नो बोलो क्योंकि टाइम बहुत जल्दी चल रहा है। यस मैम। यस। Do you know it? Rachna, do you know what is exclamatory sentence? यस मैम। Yes. Yes or okay, tell me Rachna. Do you know it? Yes or no? Tell me frankly. मैम आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पता है? नो। नो हाँ, मैम। जो भी है आता है नहीं आता है, yes or no में बताओ, ठीक है। Now Poonam, can you tell me what is exclamatory नो sentence? मैम। Okay, नो मैम। okay. See, exclamatory sentence display strong feelings. Wow, that's a great news. हाँ, I am going to ये हैप्पी फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसकी, वी वन द मैच, ठीक है। I'm going to give up today. तो ये क्या, मैम ये सब वॉइस स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या बिल्कुल शो क्लियर कर नहीं है। रहा है, जैसे शॉक हो, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, फियर, ठीक है, मैम लॉस, ये सारी मैम चीजें वॉइस इससे भी ब्रेक हो रही है आपकी, समझ में नहीं आ रहा। सॉरी मैम, वॉइस ब्रेक हो अभी रही है ठीक है। आपकी। कहाँ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ तक समझा था आपने?
मैम स्टार्टिंग से क्या? ही नहीं समझ में आया। अच्छा, अभी ठीक है? यस मैम। आवाज ठीक है? ओके। सी रचना, आवाज ठीक है अब? यस मैम। ओके। सो को एक्सप्रेसिव है, जैसे आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, आप बहुत एक्साइटेड हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेट न्यूज आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा खुश हैं, हुर्रे आई एम गोइंग टू गिव अ पार्टी ऑन माय बर्थडे, तो ये बहुत ज्यादा हैप्पी है, ठीक है, ये सारी वर्ड्स आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होंगे। आपको शॉक लगा तो वो भी एक्सक्लेमेटरी में आएगा, एंगर हो, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, फियर, ये सारे ही आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जहां पे आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं। क्लियर बोथ ऑफ यू? एनी कंफ्यूजन, एनी यस मैम। डाउट? ओके, नो सो मैम। okay, so there are four sentences. Now one by one tell me what is Poonam, am I audible to you? What is declarative sentence? Please unmute मैम हम yourself. यस मैम, जहाँ पूनम, सेंटेंस को मैम हाँ ओके, क्लियर बोला जाता है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, मैम ये हाँ डिक्लेयर सेंटेंस है। ठीक एंड है, okay. Now Rachna, यस मैम। can you tell me what is the how many types of declarative sentence or affirmative sentence? कितने types होते हैं यस मैम। बताइए? मैम रिपीट योर क्वेश्चन। My question is how many types of sub-types of declarative sentence? यस मैम। बताइए कौन कौन मैम से होते हैं? मैम 3 टाइप होते हैं, 3 जैसे टाइप के होते हैं कौन कौन से? मैम। मैम अफर्मेटिव सेंटेंस, वेरी गुड। पॉजिटिव सेंटेंस। हाँ देखो, 2 टाइप होते हैं, मैं समझ गई थी तुम कंफ्यूज हो रही हो। अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है, तो चाहे अफर्मेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, दोनों एक है। तो वहां 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव, ठीक है, तो 2 पार्ट है। वेरी नाइस। ओके, नाउ पूनम, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? अनम्यूट योरसेल्फ पूनम। यस मैम, जहाँ पे यस, व्हाट इज मैम जहाँ रिक्वेस्ट होती है उसी को और इम्परेटिव क्या होता है? सेंटेंस कहते हैं। रिक्वेस्ट के अलावा कौन सा होता है? डिस्क्राइब। मैम एडवाइस। एडवाइस। और क्या होता है? कमांड, ऑर्डर। कमांड ऑर्डर, राइट, सॉरी। ओके, यस मैम। वेरी नाइस। नाउ रचना, यस मैम। टेल मी व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? मैम जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मैम प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी में ये होता है प्रयोग, ये मार्क लगता है, दिस मार्क, ये जो मार्क आपको ये दिख रहा है, ये मार्क होता है, ये वाला मार्क होता है, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन एंड नीचे फुल स्टॉप का डॉट होता है, ठीक है, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और ये क्या कैटेगरी क्या शो करता है? सेंटेंस की कौन सी कैटेगरी शो करता है? इट शोज स्ट्रॉन्ग, हाँ ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, राइट, हैप्पीनेस, सैडनेस, सैड। ठीक है, okay, so there is a 7:12, so I'm going to close the session right now. Tomorrow your home assignment is that you will have to write two sentences of each in the sense, 2 sentence of declarative, 2 sentence of imperative, 2 sentence of interrogative, and 2 sentence of exclamatory, as well as 2 sentences of you will have to identify what is subject and what is predicate. Clear both of you? assignment समझ में आ गया? कल क्या करना है होमवर्क? आज रात में क्या होमवर्क करना है? यस मैम। ओके रचना, मैं बता दे रही हूँ, तुमको 2-2 लाइन लिखना है, 2-2 सेंटेंस लिखना है,
सेंटेंस जो अभी हमने पढ़े ना, 4 टाइप पढ़े हैं, क्या क्या Yes, पढ़ा ma'am. है? डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इनके आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है? पहले तो ये होम असाइनमेंट है। दूसरा, दो दो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सेंटेंस लिखने हैं। मतलब आपने एक लाइन लिखा, उसमें आप बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा के। बोथ ऑफ यू कंफ्यूजन तो नहीं है? रचना, कोई ma'am. कंफ्यूजन है? पूछो, क्या करना है रचना, क्या करोगी? होमवर्क में क्या है बताओ? मैम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है मैम, और मैम जो ठीक है, सेंटेंस है वो मैम उसको करना जो है। काइंड्स बताया उसके दो दो एग्जाम्पल लिखने तो हैं, example- ठीक है? ओके, सो हैव अ नाइस इवनिंग। एनी Have a क्वेश्चन, एनी Okay, डाउट? ma'am. No, ma'am. कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, Bye-bye. सी यू टुमारो, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय Same to you, ma'am. बाय बेटा।